फिल्म द कश्मीर फाइल्स, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म जैसे ही रिलीज हुई सवालों के घेरे में भी आई, विवाद भी पैदा हुआ। लेकिन इस फिल्म में दिखाया गया कि किस तरह से उस वक्त कश्मीरी पंडितों पर जुल्म ज्यादती की गई। कश्मीरी पंडितों पर निजाम मुस्तफा के नारे के साथ रातों रात उन्हें भगाने की कोशिश की गई और तब से लेकर के अभी तक कश्मीरी पंडित लौट करके नहीं आए। जिसने भी फिल्म देखी आंसू बहाए बिना रुक नहीं पाया। लेकिन अब फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर नया विवाद खड़ा हो गया है और विवाद खड़ा करने वाले हैं इजराइल के फिल्म मेकर। पहली बड़ी खबर आगे चलते हुए एक अनुपम खेर इस वक्त इंडिया न्यूज पर लाइव हैं फिल्म द कश्मीर फाइल्स विवाद को लेकर के। इंडिया न्यूज पर लाइव, एक बार सुनिए। अनुपम खेर, because I think for me you represent this Kashmir incident in a such touchy way, and I think that was my idea. So thank you very much for coming and seeing me. I represent, as you said, the Kashmiri community and also, as you said, inside the face. But it's unfortunate that we had a fantastic festival and everything went up well. I was part of that festival. What should have ended on a very high note for International Film Festival of India, one person decided that he will take away the whole limelight. The Fauda caste, Fauda is very, very popular in India, and they were here. We should have been celebrating their arrival to India, to International Film Festival, and unfortunately we have to talk here about something. So I feel that in every country which has a freedom of speech, there are people who think they will use a platform like this. If he himself does not like a film, you are most welcome to say it. But if you are the jury member, you cannot say, you cannot use the word vulgar propaganda. I think it's a vulgar remark by that person, and who himself is vulgar and who himself is an opportunist who used this platform to put forth his propaganda or whatever he believes in. The world has identified with the film, and the pain and the problem of Kashmiri Pandits have been going on for the last 32 years. But in answer to your question, it has strengthened the ties, because when somebody opposes certain things, you discover how together the two countries are. For the amazing, very brilliant gesture by Counsel General to have come here proves that this is a relationship, and it is a relationship of pain, because both the countries have suffered exodus and Holocaust. So, which is the truth. That's what I feel. Social media is commenting on Holocaust for your supporters, like the references which are being drawn between the two things, like somebody who has suffered, a community or country who suffered from such, like, how can they make it? You see, from the moment Kashmir File जब से release हुई है, since then there is a section of people who oppose anything which is the reality of India. So that is how that becomes an agenda. They are sticking to their agenda. From the moment the Kashmir Files has released, they have continuously said this is this kind of a film, this is that. They have not accepted the tragedy of people. They have not accepted the exodus of people, because for them they are looking through blinkers, and that is a blinker that they have put in the front of their eyes or on the sides of their eyes, which has complete, I want to use the word nonsense and nothing else. अनुप सर, रिक्वेस्ट अगर आप हिंदी में ही स्टेटमेंट करें नेशनल मीडिया। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा था इनके लिए अंग्रेजी में, ताकि मेरे हिसाब से जो इस इंसान ने, जो ऑब्वियसली मानवीय नहीं है, जिसके अंदर सेंसिटिविटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये जूरी का इनको मेंबर बनाया इनके काम को देखते हुए। शायद मैंने तो इनका काम भी नहीं देखा, ना मैंने इनका नाम सुना है, बट उनको इस मंच का इस्तेमाल करना, अगर उनको फिल्म पसंद नहीं आई है, वो उनकी पर्सनल राय थी, वो कह सकते थे कि मुझे फिल्म पसंद नहीं आई, मगर उनके शब्दों के चयन को मैं पूरी तरह से रिजेक्ट करता हूँ। उनका ये बोलना कि ये वल्गर प्रोपेगेंडा है,
ऐसा इंसान ही वल्गर होता है, ऐसा इंसान जिसकी सोच ऐसी है, जिसकी सोच में मानवता नहीं है, और जो वो उस कंट्री से आता है जो हॉलोकास्ट की विक्टिम रही है। अगर उनको उनका दर्द नहीं समझ में आएगा तो कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी हिंदुओं का एक्सोडस का पेन इनको कैसे समझ में आएगा। तो ये रियलिटी है कश्मीर की, ये रियलिटी है। और एक बहुत अच्छा मौका था, बहुत अच्छे तरीके से पूरा हमारा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गया था, मैं खुद वहाँ पर था। एंड इसका जो अंत था वो बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए था, सेलिब्रेटरी मूड में होना चाहिए था। मैं चाहता कि काउंसिल जनरल यहाँ आते तो मुझे बधाई देने आते, मगर ये यहाँ आए हैं मुझसे सॉरी बोलने के लिए। इनको कोई इसकी ज़रूरत नहीं थी, मगर ऐसे लोग हैं हर देश में, कुछ इस किस्म के लोग होते हैं जिनको शायद देश अच्छा नहीं लगता है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जिस प्रकार से ये कमेंट किया गया, आपको लगता है कि दो कंट्रीज के बीच में थोड़ा बहुत तकरार हो सकती है? नहीं, कुछ नहीं ऐसे। ये इन चीज़ों से तो कंट्रीज साथ में आती हैं। ये जो साथ में आके यहाँ बैठे हैं, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि रिश्ते और गहरे हुए हैं। क्योंकि रिश्ते सिर्फ खुशी के नहीं हैं, तकलीफ के भी हैं, दुख के भी हैं, दर्द के भी हैं। इसलिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। कोई भी रिश्ते तो जुड़े हैं, क्योंकि दर्द जो है वो रिश्ता जोड़ता है। और एक आदमी ऐसा बोले, आपको क्या लगता है कि इस तरह की बातें हमारे हिंदुस्तान में नहीं होती? ये टूल किट गैंग है। जैसे ही ये इन्होंने स्पीच दी, एक आई थिंक 30 सेकंड के अंदर भरमार आ गई सबकी, हाँ देखिए। तो इसका मतलब है, और मुझसे किसी बड़े विश्वस्त सूत्रों ने कहा कि उससे पहले पूरी रात अपने कमरे में नहीं थे, पता नहीं कहाँ थे। आई वांटेड टू ब्रिंग इट टू योर नोटिस दैट आई वाज टोल्ड बाय अ वेरी informed source that he was missing throughout the night from his room. So I was telling them this is a toolkit gang who sent the messages there. So everybody knew that this is the statement that he is going to make, and he wrote that speech which was not given, which was not he was supposed to speak. So it's a very pre-planned kind of a thing. It's unfortunate, but that's it. Sir, do you think his sensitivity is mocked on a higher level on an international platform? Sensitivity, whether it's mocked at the international platform or on a small platform, is in itself is an insensitive thing to happen. But to use the platform of International Film Festival of India for your own agenda, for your own purpose, is not only unfortunate, it's disgusting. But that one individual does not represent the country. I have friends. My film Wednesday was screened at Tel Aviv Film Festival. The most wonderful people from Israel who have supported our film, who have said such amazing things on the social media about it. So I don't think one person it's the two countries. It's one person as an individual who has the freedom of speech in his own country. Like in our own country, we have such people. I would like to take one question, sir. But the other hand, we are seeing some section of people are saying that this is more clear. The agenda of other side people is more clear. Sir, हमारे देश में ही लोग ऐसे हैं, क्या कहना चाहिए? वही तो मैंने कहा है ना कि एक खास प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो तो साथ में जुड़ते ही हैं, तो बट वो बहुत कम मात्रा में होते हैं, बट वो जुड़ते हैं। उनका पूरा पर्पस ही ये था, मुझे लगता है। थोड़ा ऊंचा बोलिए। संजय राउत पॉलिटिकल कमेंट्स भी आ रहे हैं, बहुत पॉलिटिकल कमेंट्स आ रहे हैं, जिससे कहा जा रहा है कि कश्मीर फाइल्स भी आनी चाहिए, जो अभी वो भी दिखाई। संजय राउत जी तो ऐसे इंसान हैं जिन्होंने एक बड़े महान एक्टर की मौत पे भी उन्होंने अपने एजेंडे की बात कही है, तो उनकी बात को मैं क्या बोलूँ मैं, जो इतने बड़े कलाकार की मौत को भी बख्शते नहीं हैं, उसमें भी एक लाइन डालते हैं, तो उनके बारे में क्या बोला। विक्रम गोखले जी की मौत पे उन्होंने ऐसा लिखा था एक लाइन। सर इक्वली हिंदी में जाना चाहिए, लास्ट सवाल होगा।
कि हम पॉलिटिकल कमेंट्स की बात कर रहे हैं, बट विदिन द इंडस्ट्री भी इस चीज को मॉक किया गया है। स्वरा भास्कर का भी ट्वीट आया था कि अब दुनिया के सामने सच आ चुका है। देखिए, हर एक इंसान के ट्वीट को, हर एक इंसान की बात को मैं उनके ऊपर कमेंट करके उनको कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहता। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि ये यहाँ आए, ये इनका बड़प्पन है। It's his greatness to come here, and it's his love for me and for the film that should be sufficient for this moment. And thank you so much once again, sir, for making the effort and leaving your work and coming here. Thank you, no problem. And फिल्म एक्टर अनुपम खेर को आप सुन रहे थे। अनुपम खेर का ये कहना था द कश्मीर फाइल्स का विरोध करने वाले और द कश्मीर फाइल्स को वल्गर प्रोपेगेंडा बताने वाले जो लोग हैं या इजरायली जो फिल्म मेकर हैं, एक तरीके से मैं उन्हें टूलकिट गैंग कहूंगा। और ये बयान बहुत शर्मनाक है। उन्हें पता नहीं कि एक्सोडस का मतलब क्या होता है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख वाली बात यह है कि उस देश के फिल्म मेकर ने यह बात कही है जिस देश ने एक बड़ा होलोकॉस्ट यानी कि नरसंहार झेला है। सीधे चलते हैं मुंबई अभिषेक शर्मा के पास में। अभिषेक, क्या माना जाए कि द कश्मीर फाइल्स के नाम से एक बार फिर से आ गया है सियासी भूचाल, फिल्म फ्रेटर्निटी के अंदर भूचाल? और जो फिल्म फ्रेटर्निटी है ये कितने वर्गों में बढ़ गई है? क्योंकि अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री एक तरफ हैं, अशोक पंडित एक तरफ हैं, दूसरी तरफ स्वरा भास्कर जैसे लोग हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल राशि, देखिए जब भी ऐसी कोई बातें आती है लगातार फिल्म इंडस्ट्री दो भागों में बंटी हुई दिखाई पड़ती है और इस बार भी यही है। हालांकि साफ है कि इस बार आवाज कश्मीर फाइल्स की तरफ से बहुत तेज है। कश्मीर फाइल्स की तरफ से लगातार एक के बाद एक लोग लगातार सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो कश्मीर में हुआ है अगर वो फिल्मों में दिखाया गया तो उसमें गलत क्या है। उसके ऊपर ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे इश्यूज है जिसको लेकर पहले फिल्म बन चुकी है। तमाम ऐसे इतिहास की बात करें, तमाम फिल्में बन चुकी है। आखिरकार कश्मीर फाइल्स को लेकर क्यों विरोध आखिरकार हो रहा है, इसको लेकर लगातार सवाल खड़ा किया जा रहा है। यही कारण है अनुपम खेर से लेकर तमाम लोग अब इस बात पर कह रहे हैं कि झूठ के जो पर होते ज्यादा दिन नहीं होते हैं, झूठ ही होता है। एक बिग ब्रेकिंग है द कश्मीर फाइल्स को लेकर के ही। द कश्मीर फाइल्स फिल्म विवाद का मामला, एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बड़ा हमला बोला है। कश्मीरी पंडितों ने जो जुल्म सहा वो भूलने वाला नहीं है, ये एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा। टिप्पणी करने वाले महोदय को सोचने की जरूरत है कश्मीरियों के बारे में। ऐसे बयान जो दिए जाते हैं शर्मनाक हैं। नरोत्तम मिश्रा ने आगे कहा, शर्मनाक बयान से पूरा देश आहत है, जाके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई, यानी दूसरों का दर्द वो लोग क्या जानेंगे जब तक खुद उस तरह का दर्द झेल नहीं लेते हैं। ये कहना है एमपी के गृह मंत्री का। लेकिन गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष राजस्थान के, इसके अलावा नरोत्तम मिश्र गृह मंत्री मध्य प्रदेश, द कश्मीर फाइल्स पर सियासत कितनी है देखिए भी और सुनिए भी। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कश्मीर फाइल को किसी व्यक्ति ने इसको प्रोपेगेंडा बताया। सच्चाई तो यह है कि उसने केवल कुछ हिस्सा दिखाया है। अगर कश्मीर की हालत जो इन वर्षों में रही है और हुई है उसको अगर सारी दिखाए तो रोंगटे खड़े हो जाए। ये तो फिल्म बनाने वाले ने भी सारे पहलुओं को टच करने का प्रयास किया। जो जुर्म और जातियां और जिस प्रकार की घटनाएं वहाँ हुई है वो तो बहुत हृदय विदारक है। जाके पाए ना फटी बिमाई, वो का जाने पीर पर आई। सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा होने वाले नदब लापिट जी, आपको कश्मीरियों की पीड़ा समझ ही नहीं आएगी। 90 के दशक में घर-बार छोड़ने का और अपनों को छोड़ने का जो दंश कश्मीरियों ने, हिंदुओं ने भोगा है ना, आप अगर उनके पास जाके एक बार समझने की कोशिश करते, सुनने की कोशिश करते तो आपको शायद एक अंश उस पीड़ा का एहसास हो पाता। कश्मीर फाइल फिल्म को जिस तरह से आपने प्रतिक्रिया दी है ये पीड़ादायी है। सवाल सिर्फ और सिर्फ एक ही है, द कश्मीर फाइल्स आखिरकार अश्लील कैसे हुई? जिसने कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाया, जिसने कश्मीरी पंडितों का जब एक्सोडस हुआ तब की सियासत दिखाई, तो फिर ऐसे में ये फिल्म अश्लील कैसे हो गई, प्रोपेगेंडा कैसे हो गई? सवाल ये बहुत बड़ा है। इस पर कश्मीरी पंडित अपना दर्द कैसे बयां करते हैं, सुनिए। पूछना चाहिए जिन लोगों ने ये झेला है। और कश्मीर फाइल्स फिल्म जो है वो कोई ऐसे मिथ पे नहीं बनी है, वो
फिल्म बनी है उन लोगों से पूछा गया है कि आप पे क्या बीती है, उन लोगों के जो फैक्ट्स हैं उनको कलेक्ट करके वो फिल्म बनाई गई है। जी जरूर ऐसा ही है। प्रोपेगेंडा तो ये लोग कर रहे हैं जो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि सर अगर 90 का डेटा आप लोग निकालेंगे और 2022 का डेटा आप निकालेंगे तो मुझे लगता है आप लोगों को पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये प्रोपेगेंडा है या फिर रियलिटी है, क्योंकि हम लोगों ने फेस किया, हम बेटर जानते हैं। वहां से दोबारा निकल के यहाँ आना हम जानते हैं। 90 में हमारे साथ जो हुआ दोबारा सेम वही हमारे साथ हो रहा है। हम मजबूर है सर, 6 महीने से हम लोग सड़कों पे बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। तो हम लोग पागल नहीं बैठे हैं, हम लोग रियलिटी हम फेस कर चुके हैं। मैं कहती हूँ कश्मीर फाइल्स तो कुछ भी नहीं है सर, उसमें दिखाया ही क्या गया है, वो तो जस्ट 2% 5% दिखाया गया। हमारे साथ जो कुछ हुआ है वो बयान करने लायक ही नहीं है। तो जब उस चीज को, सच्चाई को आप बोल रहे हो कि नहीं ये गलत है, तो उससे बड़ी त्रासदी हम पे क्या है। एक बहुत बुरा लगता तब उस चीज को सुनने में कि कोई ये बोल रहा कि आप पे ऐसा हुआ नहीं है। अगर हुआ नहीं होता तो भागे क्यों। मैं उस दिन बड़ा था, उन दिनों कोई 13-14 साल का था, मुझे कुछ रियलिटी सुनने में आई है जो हुआ है उस पिक्चर में, वही आज हमारे साथ हो रहा है। पिछले 1 साल 1.5 साल से 23-24 हिंदू मारे गए हैं हमारे में। हम 200 दिनों से यहाँ सड़क पे बैठे हैं, हम वही मांग रहे हैं कि हमारी जानें बचाए जाए, वो भी नहीं बचा रही है, उसके बदले में तनख्वाहें बंद की जा रही है। बाहर का बंदा जो है, जो इजराइल का जो भी फिल्म मेकर आया था, उसने बोला इसका डिसीजन तो हमने लेना पड़ेगा। त्रासदी मेरे साथ हुई और कमेंट कोई और मार रहा है। मैं आउटराइटली रिजेक्ट कर रहा हूँ उसके स्टेटमेंट को, क्योंकि जो इस ग्राउंड जीरो पे हम कश्मीरी पंडित थे, हमने अपनों को खोया है। उसको क्या पता है, वो एक फिल्म मेकर है, फिल्म बना के चला गया और स्टेटमेंट दे के चला गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा।